Hello students, how are you all? Today we'll start a new topic of chapter 8, that's name is immune system in the body. Okay, many times in previous classes I have told you we have a well developed immune system that provides help to make immunity against the pathogens. Okay, this immune system means your group. Okay, this immune system consists different kinds of things like some lymphoid organs, tissues, cell and soluble molecules. Okay, combinedly these things make a system that is called immune system. Okay, तो इस क्लास के अंदर बेटा हम ये जानेंगे कि इम्यून सिस्टम के पास कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हेल्प करती हैं फॉर इम्यून रेस्पॉन्स. ओके, इम्यून सिस्टम इंक्लूड्स lymphoid organs. There are two types of lymphoid organs. Primary lymphoid organ and secondary lymphoid organs. Okay, primary lymphoid organs is of two types. Not two types. Primary lymphoid organs includes bone marrow and second is thymus gland. Okay, secondary lymphoid organs includes spleen, lymph node, tonsils, appendix, pairs, patches, MALT, GALT, etc. Okay, these organs occurs in a secondary lymphoid organs. Okay, जैसे spleen हो गया, lymph nodes, tonsils, appendix, pairs, patches, MALT, mucosa, associated lymphoid tissue, GALT, gut associated lymphoid tissue. ठीक है, तो lymphoid organs occurs in a immune systems. Okay, second, tissues. Okay, and example of these tissues: lymphoid or lymphatic tissues. Number third, cells. Immune cells like B and T, lymphocytes, and second, germ killing cells. Example: WBC, basophils, neutrophils, macrophages, dendritic cells, etc. Okay, and number fourth, soluble molecules like
antibodies. Okay, I have told you in our body fluids some natural antibodies occurs, like IgA, IgG, IgM, IgE and IgD. Okay, they also provide help to make immunity against the pathogens. बताया था आपको मैंने कि if foreign antigens enter into our body, then antibodies bind against this foreign antigens. Okay, to for destroying or killing. फिर क्या होगा कि जब एंटीबॉडीज को किल कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी फॉरेन एंटीजेंस को, तो क्या बनेंगे बेटा हमारी बॉडी के अंदर? इम्यूनिटी. ठीक है, तो ये सब जो है बेटा लिम्फोइड ऑर्गन्स, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, लिम्फोइड और लिम्फेटिक टिश्यूज, सेल्स, immune cells, germ killing cells, soluble molecules, soluble protein molecules. Okay, combinedly they make a system that is called immune system. Okay, that present in our body. ठीक है, अब हम जानेंगे बेटा लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में. ठीक है, you know very well there are two types of lymphoid organs. First, primary lymphoid organs. Okay, and primary lymphoid organs consist bone marrow and thymus gland. क्लियर? अब आप जाने बेटा bone, and in this bone red bone marrow occurs. Okay, I have told you in previous classes there are two types of immune cells, B lymphocytes and T lymphocyte cells. Okay, and for your kind information, all blood cells are formed in a bone marrow. जितनी भी जो ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो. ओके, इन बोन मैरो वन स्पेशल काइंड ऑफ सेल अगर, ठीक है, मल्टी पोटेंशियल हेमोटोपोइटिक स्टेम सेल्स. ओके, दैट प्रोवाइड्स हेल्प फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स. ठीक है, तो क्या नाम है बेटा उस सेल का? मल्टी पोटेंशियल हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स. ठीक है,
अब क्या होगा बेटा कि बताया भी आपको मैंने कि जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं बोन मेरो और थाइमस, ठीक है, इनमें क्या होता है बेटा कि जो बोन मेरो है ना, बोन मेरो के अंदर सेल्स की फॉर्मेशन होती है, लिम्फोसाइट सेल्स की, ठीक है। अब चाहे वो बी लिम्फोसाइट्स है या टी लिम्फोसाइट्स है, ठीक है, लेकिन जो मैचुरेशन के लिए होता है ना, जैसे लिम्फोसाइट सेल्स बनी कहाँ पर है, बोन मेरो के अंदर, ठीक है। तो कुछ जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं दे रिमेन्स इन अ रेड बोन मैरो, ओके, एंड दीज सेल्स विल बी नोन एज बी लिम्फोसाइट्स, ओके, बट some lymphocyte cells migrate to thymus gland, okay, you know very well about thymus gland occurs just near to heart, okay, और जो thymus gland होती है बेटा, the size of thymus gland is large in बाई बर्थ, ठीक है, जो छोटे बच्चों का थाइमस ग्लैंड होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन जैसे 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 एज बढ़ती रहती है बेटा तो जो साइज है थाइमस ग्लैंड का इट बिकम्स शॉर्ट, ओके। तो हम कह रहे हैं बेटा जो थाइमस ग्लैंड है इट सिक्रेट्स वन स्पेशल काइंड ऑफ हार्मोन्स दैट इज कॉल्ड थाइमोसिन हार्मोन्स, ओके। व्हेन लिम्फोसाइट सेल्स कम्स कॉन्टैक्ट विद थाइमोसिन हार्मोन्स देन दे बिकम मैच्योर, क्या हो जाती है बेटा, वो मैच्योर हो जाती हैं। नाउ दीज लिम्फोसाइट्स विल बी नोन एज थाइमोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स, ओके। तो आप समझें कि बोन मैरो के अंदर जो सेल्स बनी है लिम्फोसाइट सेल्स, ठीक है, इनकी फॉर्मेशन तो यहीं पे होती है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ दीज लिम्फोसाइट्स टेक्स प्लेस इन रेड बोन मैरो, ओके, बट some lymphocytes mature in thymus gland in the presence of thymosin hormones, ये मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर हमें ये जानना है कि व्हाट इज द रोल ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है, कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का फंक्शन क्या होता है और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो समझ गए आप इस चीज को कि जो ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं, ठीक है, दे हैव टू प्रोजिनेटर्स, ठीक है, एक तो होता है माइलोइड कॉमन माइलोइड प्रोजिनेटर्स और दूसरा होता है बेटा लिम्फोइड कॉमन लिम्फोइड प्रोजिनेटर्स, ठीक है। तो आप समझ लें या इसको आप यहां समझे बेटा, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स that present in a red bone marrow, okay, myeloid tissue or myeloid progenitors, lymphoid progenitors, okay, it is also divides mega karyocytes, RBC, mast cells, myoblast, okay. It provides help for the formation of thrombocytes or you can say that blood platelets, okay, RBC or erythrocytes, mast cells, myoblast provides help for the formation of neutrophil, basophil,
इयोसिनोफिल, ठीक है, और जो बनती है लास्ट में बेटा वो होगी मोनोसाइट्स, ठीक है। तो आप समझे दोबारा, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, दे हैव टू प्रोजेनिटर्स, माइलॉइड और लिम्फोइड। माइलॉइड भी डिवाइड किसमें हो रहा है, मेगा कैरियोसाइट्स में, आरबीसी में, मास्ट सेल्स में और मायोब्लास्ट के अंदर, ठीक है। और अब जो मेगा कैरियोसाइट्स है वो क्या बनाती है, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। और जो अब मायोब्लास्ट है वो क्या बना रही है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, ठीक है, और मोनोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट जो होती है, मोनोसाइट्स वो बनाएगी, मोनोसाइट्स जो है बेटा यहाँ पर देख लें, ये देखो इससे आप समझ लें, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड और नंबर फोर्थ ये भी इससे बन रही, ठीक है। या इसको आप यहाँ देख लें, मोनोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट्स क्या बना रही है, डेंड्रिटिक सेल्स और मैक्रोफेज, ठीक है। ये किससे बन रही है ना, मोनोसाइट से। अब आपको पता है बेटा डेंड्रिटिक और जो मैक्रोफेज सेल्स होती हैं, दे बोथ आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है, कि अगर कोई भी फॉरेन एंटीजन इनके अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है, तो ये उसको बाहर निकालती हैं। उसके जो पार्ट्स होता है कोई उस पैथोजन का, पहले तो जब अंदर एंटर होगा, ठीक है, तो उसको क्या है, तोड़ देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। फिर जो उसका कोई पार्ट होता है, ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ दिस पैथोजन, ठीक है, उसको बाहर ही रिप्रेजेंट करती हैं। और किसको इन्वाइट करती हैं, ये इम्यून सेल्स को, ठीक है। इसलिए इनको बोला है डेंड्रिटिक सेल्स को और मैक्रोफेज को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। तो ये आप समझे बेटा इस चीज को, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें बेटा लिम्फोइड प्रोजेनिटर्स की, ठीक है, कि व्हाट इज द रोल ऑफ लिम्फोइड प्रोजेनिटर्स, ठीक है, कि अब जो लिम्फोइड प्रोजेनिटर्स होता है बेटा, ठीक है, अब ये हेल्प करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनके नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, और दूसरा लिम्फोसाइट सेल्स को, ठीक है। एंड यू नो वेरी वेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट सेल्स, कौन कौन सी, एक तो बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, ठीक है, और दूसरी टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये पूरा आप समझे बेटा, ठीक है, जो किसके अंदर हुआ है, जो किसके अंदर हुआ है बेटा, रेड बोन मैरो के अंदर, ठीक है। बताया था भी आपको मैंने कि एक मल्टी पोटेंशियल, ठीक है, मेन जो सेल्स होती है, नाम क्या था उसका, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ओके। इट हैज टू प्रोजेनिटर्स, माइलॉइड टिश्यू, लिम्फोइड, ठीक है। माइलॉइड्स डिवाइड हो गया मैक्रोकैरियोसाइट्स में, आरबीसी, मास्ट सेल्स, मायोब्लास्ट के अंदर, ठीक है। और इनसे जो फॉर्मेशन हुई है सेल्स की वो आपको मैंने अभी बता दिया है, ठीक है। अब हमें जो मेन जानना है, ठीक है, मेन हमें जानना है सिर्फ बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के बारे में, ठीक है, कि भाई ये कैसे मैच्योर होती हैं। फॉर्मेशन तो कहाँ पे हुई है इनकी, बोन मैरो के अंदर, ठीक है। तो कुछ तो मैच्योर कहाँ पर हो गई हैं, बोन मैरो के अंदर, उनको नाम क्या दे दिया अपन ने, बी लिम्फोसाइट्स, ओके। एंड सम लिम्फोसाइट सेल्स मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड, ठीक है, उनको नाम क्या दे दिया अपन ने, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और जो बाकी ये सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, ठीक है, डेंड्रिटिक सेल्स और मैक्रोफेज सेल्स, ठीक है, दीज सेल्स ऑल्सो प्रोवाइड्स हेल्प इन इम्यून सिस्टम, ओके। पता है आपको बेटा कि ये जो सेल्स हैं क्या कहलाती हैं, जर्म किलिंग सेल्स, ठीक है। तो अब आप दोबारा बेटा समझिए उसे, द फंक्शन ऑफ बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड। रेड बोन मैरो, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ओके, that provides help for the formation of lymphocytes, ठीक है। तो हम कह सकते हैं
कि जो फॉर्मेशन की साइट्स है, ठीक है, जो सेल्स बन रही है कहाँ बनती है, ये बोन मैरो के अंदर, ठीक है। फिर बताया अभी आपको मैंने बता कि जो दो टाइप्स थे लिम्फोसाइट्स के, बी और टी लिम्फोसाइट्स, एक बार आप ये भी समझ लीजिए, ठीक है, कि कुछ जो लिम्फोसाइट्स होती हैं बेटा, दे रिमेन्स इन बोन मैरो, ओके, these lymphocytes will be known as B lymphocytes, okay, and some lymphocytes migrate to thymus gland, ठीक है, बताया भी जस्ट आपको मैंने, थाइमस ग्लैंड जिसका साइज बड़ा होता है, ठीक है, एडल्ट स्टेज में, लेकिन जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता चला जाता है, ठीक है, देन द साइज ऑफ दिस ग्लैंड बिकम्स रिड्यूस, बिकम शॉर्ट, ठीक है, मतलब छोटा साइज हो जाता है इसका, ठीक है। तो कुछ जो लिम्फोसाइट्स हैं वो कहाँ चली गई बेटा, थाइमस ग्लैंड के पास, ठीक है, जो कहाँ पे होती है, जस्ट नियर टू हार्ट, ठीक है। तो इट सीक्रेट्स वन हार्मोन दैट इज कॉल्ड thymosin, okay. In the presence of these hormones, these cells, lymphocyte cells, will be known as thymocytes, okay, or in short we can say that T lymphocytes. According to their function, T lymphocyte cells also categorized into different types. There are some T lymphocytes, TH lymphocytes, T helper lymphocytes, okay, TC lymphocytes, T cytotoxic, T NK, T natural killers, ठीक है, T सेंटिसाइड सेल्स, ठीक है। तो जो T lymphocyte सेल्स होती हैं, T lymphocytes बेटा ये भी डिवाइड होती है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, ठीक है, समझ रहे हो आप इस चीज को। तो ये बड़ा फंक्शन था किसका, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का, बोन मैरो का और थाइमस ग्लैंड का, ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है, कि जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं उनके क्या फंक्शंस हैं। First, our topic is, ये यहाँ पर है बेटा, secondary lymphoid organ. First, our topic is spleen. Okay, spleen is a bean-shaped organs, okay, bean-shaped organs, 5-inch length, 3-inch width, and 1.5-inch हम कह सकते हैं इसका थिक width और ये लॉन्ग, ठीक है। बीन शेप्ड ऑर्गन्स होता है बेटा ये, इसको हम कह सकते हैं कि भाई इट्स ए लॉब्ड ऑर्गन्स, ठीक है। बीन शेप्ड ऑर्गन्स है, 5 इंच लॉन्ग है, 3 इंच विड्थ है, 1.5 इंच क्या है, थिक है, ठीक है। अब क्या बेटा मेन आपको जानना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लीन इन आवर बॉडी, ओके। स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर ऑफ ब्लड। क्या कहलाता है बेटा ये, इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर ऑफ ब्लड, ठीक है, कि किसको फिल्टर करेगा बेटा, ब्लड को फिल्टर करता है ये, ठीक है, स्प्लीन जो होता है। अब क्या है आप समझे इस चीज को, ठीक है। यू नो वेरी वेल व्हेन डिजीज कॉजिंग एजेंट और माइक्रोब्स एंटर इनटू अवर बॉडी देन इट एंटर्स इनटू द बॉडी सेल्स, ठीक है, वो कहाँ पर एंटर होगा बेटा, बॉडी सेल्स के अंदर। दीज आर बॉडी सेल्स, ठीक है, और ये जो है डिजीज कॉजिंग एजेंट, पैथोजन। When pathogens enter into the body, then it enters into the body cells. Okay, in body cells, it multiplied. क्या होता है बेटा ये, multiplied होता है
okay, and increase its populations, okay. After this pathogens comes out from body cells, ठीक है भाई, जैसे बॉडी के अंदर एंटर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल it enters into the body cells for multiplication, okay, and during multiplication it increases its number, ठीक है, और जब उसके नंबर इंक्रीज जाएंगे बेटा तो एट लास्ट कहाँ पर आना है उसको, इनटू दी बॉडी फ्लूइड्स, कहाँ पर आ गया बेटा ये, इनटू दी बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर आ गया। अब जो ये बॉडी फ्लूइड्स है बेटा ये क्या है, ब्लड है, ठीक है, और मैंने बताया आपको कि जो स्प्लीन होती है, स्प्लीन फिल्टर ब्लड, ठीक है, कि जो ब्लड होता है उसको फिल्टर कौन करता है, स्प्लीन फिल्टर करती है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, एक डेफिनेशन लिख रहा हूं बेटा आपके सामने में, समझें कि ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू गैप in sinusoid lining of spleen, ठीक है, कि जो ब्लड है बेटा, ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू गैप इन sinusoid linings ऑफ spleen, ठीक है, ये आप समझे बेटा, सिनुसॉइड लाइनिंग होती है किसके अंदर, स्प्लीन के अंदर, ठीक है, उसके थ्रू जो ब्लड होता है वो क्या होता है, फिल्टर होता है, ठीक है, एंड इट पासेज इनटू ट्रेबेक्युलर वेन्स, एक लार्ज वेन होती है उसका नाम क्या है, ट्रेबेक्युलर वेन्स, फिर उसमें ब्लड जाता है, ठीक है। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब ब्लड फिल्टर होता है बाय द हेल्प ऑफ स्प्लीन, ठीक है, तो क्या होगा बेटा कि जैसे ये स्प्लीन है, समझें आप, ठीक है, और ये ब्लड क्या हो रहा है बेटा, फिल्टर हो रहा है, ठीक है, तो होगा क्या बेटा कि जो स्प्लीन होती है ना, स्प्लीन इज ए लार्ज रिसीवर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। एक तो क्या होता है इसका काम बेटा कि जो स्प्लीन होती है ना, इट प्रिवेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एबनॉर्मल और डेस्ट्रॉयड आरबीसी, जो डेस्ट्रॉय और एबनॉर्मल जो आरबीसी होती हैं उसको ये पास नहीं होने देता है, कौन, स्प्लीन, ठीक है, तो उसको रोक लेता है, एक तो ये है, ठीक है। तभी तो मैंने बोला है कि स्प्लीन इज ए लार्ज रिसीवर ऑफ आरबीसी, दैट्स व्हाई स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवी यार्ड्स ऑफ आरबीसी, ये आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा कि इस ब्लड के अंदर अगर कोई भी ब्लड बोर्नी माइक्रोब्स हैं, ठीक है, ब्लड बोर्न माइक्रोब्स और फॉरेन एंटीजेंस, ठीक है, अगर वो प्रेजेंट है इस ब्लड के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा बेटा कि स्प्लीन इन ब्लड बोर्न माइक्रोब्स को क्या कर लेगा बेटा, ट्रैप कर लेगा, ठीक है, ट्रैप करने के बाद फिर ये एक्टिवेट करेगा किसको, इम्यून सेल्स को, समझ रहे हैं आप उसी को, और इम्यून सेल्स आएंगी एंड दे शो देयर ओन इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है, तो अपना इम्यून रेस्पॉन्स को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि आप समझें आप इस चीज को कि जो बोन मैरो फ्लूइड था उसके अंदर तो क्या हुई थी बेटा, फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, लिम्फोसाइट्स की, है ना, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स का, ठीक है भाई, मैचुरेशन फिर थाइमस ग्लैंड के अंदर हो गया, तो यानी कि जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन थे उनके अंदर तो क्या हुआ बेटा, प्रोलिफरेशन हुआ, मतलब फॉर्मेशन हुई थी लिम्फोसाइट्स की, ठीक है, और मैचुरेशन भी हुआ था। लेकिन जो लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होती हैं, ठीक है, फंक्शनल जो एक्टिवेट बनती हैं उनको फंक्शनल एक्टिवेट कौन बनाता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, कि अब स्प्लीन ने किसको फंक्शनल एक्टिवेट कर दिया, इम्यून सेल्स को, बी और टी लिम्फोसाइट सेल्स को, अब वो अपना काम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो एक बार दोबारा को बताऊं बेटा मैं कि जब ब्लड फिल्टर होता है बाय द हेल्प ऑफ स्प्लीन, ठीक है, तो जो ब्लड के अंदर जो ब्लड बोर्न माइक्रोब्स होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है, तो उनको ट्रैप कौन कर लेता है, स्प्लीन ट्रैप कर लेता है, ठीक है, और फिर सिग्नल भेजता है किसको, इम्यून सेल्स को, ठीक है, और फिर इम्यून सेल्स होती हैं दे शो देयर रेस्पॉन्स, ओके, इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। तो ये फंक्शन था बेटा किसका, स्प्लीन का, ओके। अब हम बात कर रहे हैं लिम्फ नोड्स की, ठीक है।
लिम्फ नोड्स जो है बेटा ये करीब 500 to 600, ठीक है, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती है इन अवर होल बॉडी, ओके, विद इन लिम्फेटिक सिस्टम्स, ठीक है, जैसे हेड है, नेक है, चेस्ट है, एब्डोमिनल है, ठीक है, अंडर आर्म्स हैं, यहाँ पर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आप जाने व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स, ओके, इन अवर बॉडी। लिम्फ नोड्स ऑल्सो नोन एज immunological filter of lymph, immunological filter of lymph. Lymph is an example of body fluid. इट इज़ येलो वाइटिश बॉडी फ्लूइड्स, ओके। अब वही सेम है बेटा, बताया आपको मैंने कि अगर कोई भी पैथोजेंस बॉडी में एंटर होता है तो इट एंटर्स इनटू द बॉडी सेल्स, इन बॉडी सेल्स इट शो मल्टीप्लेक्शन एंड इंक्रीज इट्स नंबर, ओके। आफ्टर दिस इट कम्स आउट फ्रॉम बॉडी सेल्स इनटू द बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। अब वो बॉडी फ्लूइड्स कौन सा है बेटा? लिम्फ है, ठीक है। और लिम्फ को फिल्टर कौन कर रहा है? लिम्फ नोड फिल्टर कर रही है, ठीक है। लिम्फ इज filtered by lymph node। तो अब क्या होगा बेटा कि if lymph consist microorganisms, disease causing microorganisms और foreign particles, ओके। तो क्या होगा बेटा कि जो lymph nodes होती है, lymph nodes trap these foreign particles, क्या कर लेगी बेटा? उनको ट्रैप कर लेगी, ठीक है। ट्रैप करने के बाद बेटा वो सिग्नल कहाँ भेजेगी? इम्यून सेल्स के पास, ठीक है भाई। जैसे जो लिम्फ के अंदर जो भी माइक्रोब्स थे उनको ट्रैप किसने कर लिया? लिम्फ नोड ने, ठीक है। अब लिम्फ नोड्स एक्टिवेट कर रही है किसको? इम्यून सेल्स को, फॉर देयर इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। इट इज अ फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स, ओके, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सम अदर थिंग्स that are example of secondary lymphoid organs, okay। Number 3, tonsils, okay। tonsils क्या होते हैं बेटा? tonsils का आप समझिए कि जो tonsils हैं there are two lymph nodes, ये जो two lymph nodes होती हैं they are located on each side of the back of the throat, ठीक है। two lymph nodes होती हैं and they are located at back side of throats, ठीक है, समझ रहे हैं। फिर क्या होता है बेटा आप समझें कि टॉन्सिल जो होती है ना, टॉन्सिल कंटेन्स WBC, क्या रखती है बेटा वो? WBC, एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द रोल ऑफ WBC। WBC इज एन एग्जांपल ऑफ जर्म किलिंग सेल्स, ठीक है, कि जैसे ही कोई पैथोजेंस जर्म किलिंग्स के कांटेक्ट में आएगा बेटा तो उसको फिर क्या करेंगे बेटा? वो किल कर देंगे, ठीक है। कौन? WBC जो प्रेजेंट होती है टॉन्सिल्स में, ठीक है। तो आप समझें कि टॉन्सिल्स में किसका एग्जांपल है बेटा? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का, जो हेल्प करता है किसके अंदर? इम्यून रेस्पॉन्स में, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं नंबर 3, Peyer's patches, okay। These Peyer patches occurs in ileum region of small intestine, ठीक है। तो हम बता रहे हैं बेटा कि जो Peyer's patches होते हैं, Peyer's patches are grouping of lymphoid follicles, ठीक है, कि जो Peyer's patches हैं, ठीक है, ये क्या? ग्रुपिंग ऑफ lymphoid follicles that present in the mucous membrane in ileum region of small intestine, ठीक है। आपको पता है ना बेटा, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, फूड पाइप, इट ओपन्स इन स्टोमक ओपन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इट हैज 3 रीजन्स, ड्यूडेनम, इलियम एंड जेजेनम, ठीक है। अब जो पेयर पैचेज होते हैं, पेयर पैचेज कंसिस्ट लिम्फेटिक टिश्यू, ओके, एंड पेयर पैचेज अकर्स इन द म्यूकस मेम्ब्रेन इन इलियम रीजन्स, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोवाइड हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है, कि अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उसको रोकने वाला काम कौन करता है बेटा? पेयर पैचेज करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पेयर पैचेज दैट इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स ऑल्सो प्रोवाइड्स हेल्प टू मेक इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट पैथोजेंस, ओके। समझ रहे हैं आप इस चीज को? फिर जो नंबर 4 पे है, नंबर 4 पर है बेटा
अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स ऑल्सो प्रोवाइड्स हेल्प फॉर मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज, IgA एंटीबॉडी, ठीक है। वैसे जो अपेंडिक्स है बेटा, ठीक है, अपेंडिक्स जो है एग्जाम्पल है वेस्टिजियल ऑर्गन्स का, ठीक है, उसका कोई फंक्शन होता है, लेकिन जो अपेंडिक्स है बेटा इट प्रोवाइड्स हेल्प। भाई वेस्टिजियल ऑर्गन्स को बोला था पहले, लेकिन इसको आप ये भी जाने बेटा इन केस ऑफ इम्यून सिस्टम अपेंडिक्स प्रोवाइड हेल्प, ठीक है, कि जो बी लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट्स बिकम मैच्योर इन अपेंडिक्स बाय द हेल्प ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है। और जो IgA एंटीबॉडीज होती है, ठीक है, इट ऑल्सो बिकम्स मैच्योर, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ अपेंडिक्स। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि अपेंडिक्स प्रोवाइड हेल्प फॉर मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड IgA एंटीबॉडी, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं MALT की। MALT नंबर 5 म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज और लिम्फेटिक टिश्यूज, ओके। You know very well, in our body internal tracts occurs like respiratory tracts, gastrointestinal tracts, okay, urogenital tracts, ठीक है। ट्रैक्ट्स के यहाँ पे बेटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्यूब्स होती हैं, इनर ट्यूब्स, ठीक है। अब होता क्या है बेटा कि जो इनर ट्यूब्स होती है ना, इनर ट्यूब्स, ठीक है, दे हैव म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब क्या होता है बेटा कि ऑन सब म्यूकोसल मेम्ब्रेन ऑफ दी ट्रैक्ट्स कंसिस्ट लिम्फेटिक टिश्यूज, ठीक है, कि उनके पास क्या होगा, जैसे हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स की, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स हो गई है, ठीक है। अब क्या है बेटा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स की जो इनर लाइनिंग होती है, ओके, सब म्यूकोसल मेम्ब्रेन, दिस सब म्यूकोसल मेम्ब्रेन कंसिस्ट लिम्फोइड टिश्यूज और लिम्फेटिक टिश्यूज, ओके। तो आपको पता है बेटा इस चीज का, एक तो जो म्यूकस है विस्कस फ्लूइड, इट ऑल्सो प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। और दूसरा क्या बेटा उसके पास लिम्फेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होती है, यहाँ पर लिम्फेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है, ठीक है। दे प्रोवाइड हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है। और आप ये भी जाने कि जो MALT है, ठीक है, 50% जो बॉडी के टिश्यूज है बेटा, ठीक है, वो क्या है MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होता है, ठीक है। एक है GALT, ठीक है, GALT मीन्स क्या है यहाँ पर गट इसका है बेटा गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। इसमें ये होता है बेटा कि जैसे जो गट होता है ना, गट इज द लार्जेस्ट, हम कह सकते हैं कि भाई जो गट है इट इज लार्जेस्ट मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, क्या ये लार्जेस्ट मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू होता है, ठीक है। इसके पास भी क्या होता है बेटा, इसके पास भी क्या होते हैं लिम्फोइड टिश्यू और लिम्फेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ओके। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन GALT गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू ऑल्सो कंसिस्ट इम्यून सेल्स, ठीक है। तो हम सिंपली आप जाने बेटा कि जब इम्यून सेल्स यहाँ प्रेजेंट हैं तो गट GALT, ठीक है, कि जो गट है, ठीक है, इज ऑल्सो प्रोवाइड्स हेल्प, जो गोल्ट है मतलब ना GALT गोल्ट, जो गोल्ट है बेटा इट ऑल्सो प्रोवाइड्स हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है। GALT गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, तो ये भी एग्जाम्पल बेटा किसका, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का, जो हेल्प करता है किसमें, इम्यून सिस्टम के अंदर, ठीक है। एक NALT है नेजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। तो एग्जांपल से बेटा ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के, ठीक है, आप समझें। मेनली आपको इस टॉपिक के अंदर क्या समझना है कि व्हाट्स द रोल ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ओके, इन आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस, कि भाई कैसे कैसे मतलब ये अपना फंक्शन शो करता है और फाइट करता है अगेंस्ट पैथोजेंस के साथ, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं बेटा कि नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर हम स्टडी करेंगे किसकी, एड्स की, ठीक है। थैंक यू।